Welcome to this lecture. Today we are going to discuss dispersion of light, its cause. In our previous lecture, we discussed about the angle of deviation, angle of minimum deviation, prism formula and other related things of the prism. And now let us today discuss dispersion of light. आप लोगों ने डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है क्लास 8th की फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट. आज मैं थोड़ा सा आपको ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट थोड़ा डिस्कस करूंगा, इसका काज बताऊंगा, व्हाई दिस डिस्पर्शन ऑफ लाइट ओकर्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर एक प्रिज्म है. दिस इज द प्रिज्म, दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म. सपोज यहां से एक बीम ऑफ लाइट आ रहा है. दिस इज अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट. दिस इज अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट. आपको पता है जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, दिस व्हाइट लाइट इज अ पॉलीक्रोमैटिक लाइट. पॉलीक्रोमैटिक मींस इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल वेवलेंथ्स. हमारे पास दो किस्म की लाइट्स होती है, मोनोक्रोमैटिक लाइट और पॉलीक्रोमैटिक लाइट. Monochromatic light वो लाइट होती है which is made up of a single wavelength, but polychromatic light is that light which is made up of different wavelengths. अगर हम इस प्रिज्म के इस साइड में स्क्रीन रखेंगे, this is a screen. जब हम इस प्रिज्म when we allow this beam of white light to fall on this prism, इस स्क्रीन पे हमें 7 कलर्स नजर आ रहे हैं. इस स्क्रीन पे हमें कितने कलर नजर आएंगे? 7 कलर्स नजर आ रहे हैं. इसका मतलब है जैसे ही ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म पे पड़ी, व्हाट हैपन्स, दिस लाइट इट स्प्लिट्स into its component colors. It splits into its component colors. When a beam of light, white light is passed through the prism, what happens? This white light, it splits into its component colors. This phenomena, according to which a beam of white light splits into its component colors on passing through the prism, this is called as dispersion of light. This is called as what? Dispersion of light. तो dispersion of light क्या होता है? Dispersion of light, it is a phenomena by which a beam of light gets splitted into its component colors on passing through the prism. The band of 7 colors so obtained on the screen is called what? This band of 7 colors so obtained on the screen, this is called as spectrum. This is called as spectrum. तो dispersion क्या होता है? Dispersion अब यही होता है, the phenomena according to which a beam of white light gets splitted into its component colors on passing through the prism. The band of 7 colors so obtained on the screen, that is called as a spectrum. These colors present in the spectrum in order of their increasing wavelengths are as: number 1, violet; number 2, indigo; number 3, blue; number 4, green; number 5, yellow; number 6, orange; number 7, red. जो ये वायलेट कलर होता है, इसको सबसे कम वेवलेंथ होती है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेड कलर को होती है. सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर को होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसको होती है? रेड कलर को. ठीक है ना? We have arranged these colors in order of their increasing wavelengths.
in order of their increasing wavelengths. Violet color has the smallest wavelength, whereas the red color has the longest wavelength. आज हम ये सीखेंगे कि what is the cause of this dispersion. What is the cause of dispersion? वो तो डेफिनेशन आपको सिंपली याद है, 7th क्लास में पढ़ी है, 8th क्लास में. आज हम डिस्कस करेंगे cause of dispersion. Cause of dispersion यानी why this white light splits into its constituent colors, splits into 7 colors on passing through the prism. इसका जो है सिंपल एक काज है क्यों ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है. आज मैं प्रूव करूंगा कि जो ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स. Therefore, different colors present in the white light, since having different wavelengths, therefore they will suffer different kinds of deviations. Each color जो है अलग अलग इन कलर्स की जो डिविएशन हो जाएगी, एक कलर की कम डिविएशन हो जाएगी, एक कलर की ज्यादा डिविएशन हो जाएगी. इसीलिए ये कलर्स जब ये लाइट प्रिज्म से बाहर आएगी, जो ये इमर्जेंट लाइट है, दिस इमर्जेंट लाइट विल कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. लेट मी एक्सप्लेन हाउ. ऑप्टिक्स में हमारे पास एक फार्मूला है, दैट्स कॉल्ड एज कॉशीज फार्मूला. This Cauchy's formula, it relates the refractive index of material of a prism with the wavelength of the light. It relates refractive index of material of prism with the wavelength of light. According to this Cauchy's formula, the refractive index of material of prism is given by mu is equal to A plus B lambda square plus C lambda raised to power 4 plus dash 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 dash. This A, B and C, they are the constants. Therefore, I can write mu is inversely proportional to lambda square. ये इक्वेशन जो है ये बताती है smaller the wavelength, greater will be the refractive index and vice versa. Larger the wavelength, smaller will be the refractive index. Let me call this equation number first. Now, for a thin prism, for a small angled prism, yesterday I have proved that the angle of deviation delta is equal to mu minus 1 into A. Previous lecture में मैंने thin prism के लिए, small angled prism के लिए angle of deviation निकाला था. This angle of deviation, which was the angle between the emergent ray and the incident ray, or the angle through which the light turns while passes through the prism. This was given by delta is equal to mu minus 1 into A. This implies delta is proportional to 1 by mu. Sorry, delta is proportional to mu. Delta is directly proportional to mu. इसको रखूंगा मैं नाम इक्वेशन नंबर 2. देखो बेटा, जो हमारी व्हाइट लाइट है ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट है. इट इज मेड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. इट इज मेड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स. जो हमारी व्हाइट लाइट है, इट इज अ पॉलीक्रोमैटिक लाइट. It is made up of 7 different colors having different wavelengths, with red color having the longest wavelength and violet color having the smallest wavelength. जो रेड कलर है उसको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, जो वायलेट कलर होता है उसको स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है. ठीक है बेटा. तो इसका मतलब है मैं ऐसे लिखूंगा लैम्डा रेड is greater than lambda violet. Lambda red ऐसे R से डिनोट करूंगा, is greater than lambda violet. अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की तरफ नजर डालूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म रेड लाइट के लिए कम होगा. क्यों? कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है. जब वेवलेंथ ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. इसका मतलब है फॉर रेड लाइट the refractive index of material of prism will be smaller than what light? Violet light.
So therefore I can write mu v, mu r is less than mu v. Wavelength of red light is greater than wavelength of violet light. Therefore, as per this equation number first, the refractive index of red light will be less than the refractive index of violet light. Refractive index of material of prism for red light will be less than the refractive index of material of prism for what light? Violet light. Now, therefore, from equation number second, जो डेल्टा होगा, एंगल ऑफ डिविएशन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है. इसका मतलब है जो डेल्टा आर होगा, दैट विल बी लेस देन व्हाट? डेल्टा वी. दिस एम्प्लाइज delta r is less than delta v. It means the deviation suffered by the red color is least, whereas the deviation suffered by the violet color is most. इसका मतलब है जब मैंने इसमें व्हाइट लाइट पास की, जो वायलेट कलर है, इस वायलेट कलर की सबसे ज्यादा डिविएशन होती है, सबसे ज्यादा डिविएशन होती है. जो वायलेट रेड कलर है, ये रेड कलर है, ये सबसे कम डिविएट होता है. Therefore, red color deviates least, whereas the violet color deviates most. Angle of deviation for violet color is greater than the angle of deviation of red color. इसका मतलब है जब मैंने व्हाइट लाइट यहां से पास की प्रिज्म से, चूंकि इसके मुख्तलिफ कलर जो है, they suffer different deviations. They make different angles of deviations. Therefore, these colors won't appear together on passing through the prism, after passing through the prism. Therefore, they will appear separately. This is the cause of prism. This is the cause for this is the cause of dispersion of light. This is the cause of dispersion of light. क्या है cause of dispersion of light? Different colors present in the white light have different wavelengths. Therefore, these colors suffer different deviations while emerging through the prism. Hence, they appear separately. The other colors, indigo to orange, they suffer deviations lying in between what color? Violet color and red color. वायलेट कलर एंड रेड कलर जो होता है, ये एंड कलर्स है, एक्सट्रीम कलर्स है. ये इस स्पेक्ट्रम में कौन से कलर्स है? दीज आर द एक्सट्रीम कलर्स प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम. ठीक है ना? दिस वाज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट. अब हम आगे जाएंगे. Discuss second topic, that is angular dispersion. Angular dispersion. आज हम पढ़ेंगे ये एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है. डिस्पर्शन आपको पता है, splitting of a white light on passing through the prism, that's called dispersion. cause भी आपको पता है, जो मैंने आज आपको सिखाया, इसका cause भी आपको पता चल गया. Now let us discuss angular dispersion. सपोज बेटा यहां पर मेरा एक प्रिज्म है, यह इस प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है. दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको मैं ए से डिनोट करूंगा. सपोज बेटा यहां पर यह है, दिस इज द बीम ऑफ व्हाइट लाइट, दिस इज द बीम ऑफ व्हाइट लाइट. अगर प्रिज्म नहीं होगा, दिस व्हाइट लाइट, दिस विल ट्रेवल स्ट्रेट. नाउ चूंकि हमारे पास प्रिज्म है, लिहाजा इस व्हाइट लाइट में जो मुख्तलिफ कलर्स है, दे विल गेट डिविएटेड एट डिफरेंट एंगल्स. अब आपको पता है सबसे लीस्ट जिसकी डिविएशन होती है वो कौन सा कलर होता है? दैट इज व्हाट कलर? दैट इज रेड कलर. ठीक है ना? सबसे ज्यादा डिविएशन जिस पे होती है, दैट इज व्हाट कलर? शाबाश, दैट इज वायलेट कलर. दिस इज वायलेट कलर. ये जो है दिस रे, दिस इज इमर्जेंट रे. ठीक है बेटा? ये इमर्जेंट रे जो एंगल बनाती है इस इंसिडेंट रे के साथ, उस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिविएशन. दिस इज द एंगल मेड बाय व्हाट लाइट? रेड लाइट विद द इंसिडेंट रे. इस ये एंगल जो होगा, इसको मैं डिनोट करूंगा डेल्टा आर से. दिस इज द डिविएशन सफर्ड बाय व्हाट कलर? रेड कलर. इसी तरह अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा, then this is the deviation suffered by what color? Violet color. This is the deviation suffered by what color? Violet color. These violet and red colors
दे आर द एंड कलर्स इन द स्पेक्ट्रम। एंड कलर्स, ये एंड कलर्स है, एक साइड पे वायलेट है, दूसरे साइड पे क्या है, रेड कलर। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस इन द deviations suffered by the end colors. It is the deviations suffered, it is the difference between the deviations, it is the difference between the deviations or angles of deviations suffered by the two extreme colors या two end colors present in the spectrum on passing through the prism. हम ऐसे बताएंगे, the difference between the deviations suffered by the end colors present in the spectrum on passing through the prism is called what? Angular dispersion. What is the deviation suffered by red color? Delta R. What is the deviation suffered by violet color? ज्यादा कौन है? डेल्टा V. कम कौन है? तो जो इनकी डिफरेंस होती है डेल्टा V माइनस डेल्टा R, इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। क्या कहते हैं इसको? एंगुलर डिस्पर्शन। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। देन दिस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R। द डिफरेंस in the deviations suffered by the two end colors present in the spectrum, ठीक है ना, on passing through the prism, ठीक है ना, that is called as what? Angular dispersion. It is denoted by theta. Let delta V is equal to deviation suffered by the violet color, delta R is equal to deviation suffered by the red color. Therefore this theta is equal to delta V minus delta R. Let us call this equation number first. Now we will write the expression for this angular dispersion in terms of refractive index and angle of prism. आपको पता है, for a thin prism or for a small angled prism, the angle of deviation is related to the refractive index of material of prism as delta is equal to mu minus 1 into A. Delta is the deviation, mu is the refractive index of material of prism, and A is the angle of prism. Now delta V यानी deviation suffered by violet color, this will be equal to mu V, ठीक है ना, deviation refractive index of material of prism for what color? Violet color minus 1 into angle of prism जो होगा वो constant रहेगा, that's A. डेल्टा V is equal to mu V minus 1 into A, क्योंकि डेल्टा जो है that's mu minus 1 into A. इसी तरीके से डेल्टा R will be equal to mu R minus 1 into A. Delta R will be equal to mu R minus 1 into A. Let us put the value of delta V and delta R in equation number first. We get theta is equal to, देखो डेल्टा V के बदले क्या लिखेंगे बेटा? mu V minus 1 into A. ऐसे mu V minus 1 into A, उसके बाद फिर माइनस आएगा, डेल्टा R आएगा, mu R minus 1 into A, ठीक है बेटा? A जो है that will come out of the brackets, कॉमन आएगा बेटा, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू mu V minus 1 माइनस टाइम्स म्यू आर माइनस 1 इंटू आएगा ब्रैकेट के बाहर जो है वो है ए, ठीक है? तो ये जो है ये ऐसे बनेगा, थीटा इज इक्वल टू, शाबाश, म्यू वी माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस म्यू आर प्लस 1 इंटू क्या बेटा? ए। 1 and 1 गोज, तो आपको थीटा बनेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. दिस रिप्रेजेंट्स एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर डिस्पर्शन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म. ये इक्वेशन जो है ये दिखाती हमें जो एंगुलर डिस्पर्शन थीटा है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है. It depends upon two factors. Number one, refractive index of material of prism. चूंकि प्रिज्म जो होते हैं
They are made up of different materials. Different prisms are made up of different materials. One prism can be crown glass, second can be flint glass. Therefore, these different prisms have different refractive indices. Therefore, we can say that this theta depends upon the nature of material of a prism. Number second, it depends upon angle of prism. This angular dispersion, it depends upon two factors. Number first, refractive index of material of prism, or we can say simply nature of material of prism. Or second, it depends upon angle of prism. Now, unit of angular dispersion. Unit of angular dispersion is simply this is angle. This angle. This is the angular dispersion. यहां से यहां तक डेल्टा आर है, यहां से यहां तक डेल्टा वी है, तो ये है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. चूंकि ये एंगल है, लिहाजा इसका ऐसा यूनिट सीधे हो गया रेडियन. रेडियन या समटाइम्स हम इसको डिग्रीज में लिखते हैं. ठीक है ना? ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन इज रेडियन, और समटाइम्स वी राइट इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज. आगे जाएंगे हम. नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर टॉपिक ऑफ प्रिज्म. उसको हम क्या कहते हैं बेटा? शाबाश. Dispersive power of prism. Dispersive power of prism. Dispersive power of prism. दूसरा चीज हम डिफाइन करेंगे, उसको हम कहते हैं dispersive power of prism. प्रिज्म क्या करता है? ये लाइट को स्प्लिट करता है into its constituent colors. क्यों लाइट स्प्लिट होती है? चूंकि प्रिज्म मटेरियल जो होता है, it has different refractive index for different colors. Therefore, different colors undergo different deviations while passing through the prism, because different colors have different wavelengths. Therefore, these colors, they appear separately once they come out of the prism. This phenomena by which a white light splits into its constituent colors on passing through the prism, this is called as dispersion. अब हमें आज पढ़ना है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म. एबिलिटी ऑफ ए प्रिज्म टू कॉज डिस्पर्शन. प्रिज्म की वो एबिलिटी जिससे वो डिस्पर्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे वो लाइट को सेपरेट करता है, उसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म. द एबिलिटी ऑफ ए प्रिज्म टू प्रोड्यूस डिस्पर्शन, टू कॉज डिस्पर्शन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म. इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, एंड दिस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डिविएशन. एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डिविएशन सफर्ड बाय द लाइट ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म. ये दो चीजों का रेशियो होता है. किस किस का रेशियो? Angular dispersion to the mean deviation suffered by the light while passing through the prism. The ratio of angular dispersion to the mean deviation suffered by the light while passing through the prism, that's called as angular dispersion. अब यहां बेटा आपको एक पॉइंट आया, mean deviation. ये mean deviation सुनने से पहले आपको पहले सुनना है mean light क्या होती है. mean light, जो येलो लाइट होती है, हमारे पास 7 किस्म की लाइट्स है. कौन कौन है? VIBGYOR विद गॉड. ठीक है ना? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है ना? इसमें जो ये येलो लाइट होती है, दिस येलो लाइट इज कॉल्ड एज मीन लाइट. दिस येलो लाइट इज कॉल्ड एज मीन लाइट. चूंकि इस प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वायलेट येलो लाइट के लिए होता है, दैट इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर एंड वायलेट कलर. यानी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर व्हाट लाइट? येलो लाइट is equal to arithmetic mean of refractive index of material of prism for what light? Violet light. यानी mu y होता है बराबर mu v plus mu r divided by 2. इसीलिए ये येलो लाइट जो होती है, इसको हम क्या कहेंगे? मीन लाइट.
Why yellow light is called as mean light? Because the refractive index of material of prism for yellow light is equal to the arithmetic mean of refractive index of material of prism for what light? For violet light and red light. लिहाजा जब भी आपको मीन लाइट पढ़नी होगी आप बताएंगे कि येलो लाइट इज व्हाट लाइट? मीन लाइट। अब जो डिविएशन इस येलो लाइट को होगी उस डिविएशन को हम क्या कहेंगे? मीन डिविएशन। डिविएशन सफर्ड बाय व्हाट लाइट? मीन लाइट। उसको हम क्या डिविएशन रखेंगे नाम? क्या रखेंगे नाम? मीन डिविएशन। डिविएशन सफर्ड बाय द मीन लाइट व्हाट येलो लाइट, दैट्स कॉल्ड एज मीन डिविएशन। समझ आ रहा होता? अब हम आगे जाएंगे। मैंने आपको बताया जो ये एंगुलर डिस्पर्शन होता है दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ जो ये डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म होता है दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डिविएशन। मैं ऐसे लिखूंगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन। डेल्टा क्या है? मीन डिविएशन। ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा ओमेगा इज इक्वल टू, बेटा यहां देखो नजर, थीटा किसके बराबर होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय क्या है? डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा वी? डिविएशन सपोर्ट बाय व्हाट कलर? वायलेट कलर। व्हाट इज डेल्टा आर? डिविएशन सपोर्ट बाय व्हाट कलर? रेड कलर। तो ओमेगा होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है ना? डेल्टा वी का वैल्यू हमें पता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, डेल्टा आर का वैल्यू हमें पता है दैट इज म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अभी पढ़ा। डेल्टा का वैल्यू हमें पता है दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है ना? इस इक्वेशन में देंगे ये वैल्यू तो आपको निकलेगा ये इक्वेशन। कैसे निकलेगा? ओमेगा इज इक्वल टू, शाबाश देखो डेल्टा वी के बदले क्या लिखेंगे बेटा? शाबाश, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस टाइम्स म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ठीक है ना? डिवाइडेड बाय डेल्टा के बदले क्या लिखेंगे? शाबाश, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए जो है वो कॉमन आएगा ऊपर। ठीक है ना? ये बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू, शाबाश क्या बनेगा? ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1, माइनस से जरब दे दो, माइनस आर माइनस माइनस हो गया यहां पर प्लस 1, ए जो है वो बाहर है, डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए एंड ए कैंसल्स, प्लस 1 एंड प्लस 1 माइनस 1 कैंसल्स, तो आपको निकला ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। दिस रिप्रेजेंट्स द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर डिस्पर्शन। ये एंगुलर डिस्पर्शन जो है ये एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। इट मींस ये खाली डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ठीक है ना? दिस ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। सेकंड थिंग, ये जो ओमेगा है इट हैज नो यूनिट्स, क्योंकि ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नीचे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, देयरफॉर इट हैज नो यूनिट्स। और थर्ड थिंग इसमें जो आप याद रखेंगे, दिस ओमेगा जो है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट लाइट होता है दैट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर रेड लाइट। लिहाजा जो आपका म्यू वी माइनस म्यू आर होगा दैट विल बी पॉजिटिव, सो दिस ओमेगा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। दिस कंप्लीट्स द प्रिज्म्स।